नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And according to the format of the program, we shall first give you the recitation of holy verses, and our today's verses consist of 48 to 52 ayat-e-Rabbaniya of Holy Quran. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses according to the canon of the Sharia. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me. Yawma tubaddalu al-ardu غير الأرض والسماوات وبرزوا
लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। वतगल मुजरिमीना, वतगल मुजरिमीना यौमइज़िन मुक़र्रनीना, यौमइज़िन मुक़र्रनीना फिल अस्फ़ाद, फिल अस्फ़ाद। सगाबीलुहुम मिन, सगाबीलुहुम मिन क़तिगानिन वतग़शा, क़तिगानिन वतग़शा वुजूहहुमुन नार, वुजूहहुमुन नार। लियजज़ियल्लाहु, लियजज़ियल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, नफ्सिन मा कसबत। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, सरीउल हिसाब। हाज़ा बलागुल लिन्नासी, बलागुल लिन्नासी वलियुन्ज़रू, वलियुन्ज़रू बिही वलियअलमू, वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन, इलाहुन वाहिदुन वलियज़्ज़क्कर, वलियज़्ज़क्कर वाहिदुन वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब, उलुल अलबाब। Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic scripture as well as Romanized or transliterated in Roman script. And this exercise is followed by Urdu and English translations. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. In Roman, يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. याद करो उस दिन को
जबकि बदल दी जाएगी ये ज़मीन दूसरी किस्म की ज़मीन से और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग हाजिर हो जाएंगे अल्लाह के हुजूर में। वो अल्लाह जो एक है, सब पर गालिब है। On the day when the earth will be changed to other than this earth, and the heavens also will be changed, and they will come forth unto Allah, the One, the Almighty. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. In Roman, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. In Urdu, और तुम देखोगे मुजरिमों को उस रोज के जकड़े हुए होंगे जंजीरों में। In English, thou wilt see the guilty on that day linked together in chains. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. In Roman, سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. In Urdu, उनका लिबास तारकोल का होगा और ढांप रही होगी उनके चेहरों को आग। In English, their raiment of pitch and the fire covering their faces. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. In Roman, ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. In Urdu, ये इसलिए ताकि बदला दे अल्लाह ताला हर शख्स को जो उसने कमाया था। बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। In English, that Allah may repay each soul what it hath earned. Lo, Allah is swift at reckoning. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. In Roman, هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
इन उर्दू, ये कुरान एक पैगाम है सब इंसानों के लिए। इसे उतारा गया है ताकि उन्हें डराया जाए इसके ज़रिए और ताकि वो इस हकीकत को खूब जान लें कि सिर्फ वही एक खुदा है, और ताकि अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें इस हकीकत को दानिशमंद लोग। In English, this is a clear message for mankind in order that they may be warned thereby, and that they may know that He is only one God, and that men of understanding may take heed. नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और इस हिस्से में हम तिलावत की गई आयत को समराइज़ करके आपकी खिदमत में एक्सप्लेन किया करते हैं। सूरह इब्राहीम की आखिरी आयत हैं 48 ta 52, जिसकी तिलावत को और तलफ़्फ़ुज़ को आपने समाअत किया, हमारे साथ शामिल रहे। अब इन आयत में वही क़यामत के क़िस्सों का तसलसल बयान किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन गुनाहों से बड़ी आलूदा हो चुकी है, लिहाजा जब क़यामत कायम होगी, फ़ला तहसबन्नल्लाह मुख़लिफ़ वअदिही रुसुलहू इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और वहाँ पर जो अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया ने जो वादा किया था कि जब क़यामत कायम होगी तो फिर हर शख्स का हिसाब लिया जाएगा, उसकी जज़ा का और सज़ा का फ़ैसला किया जाएगा। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी तो वहाँ पर मौजूद पाएगा, और अगर किसी ने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी तो उस बुराई को भी वहाँ पर मौजूद पाएगा। और फिर फरमाया गया कि जब क़यामत कायम होगी तो इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से बदल दिया जाएगा। चुनांचे हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन से सारे पहाड़ों को, दरख्तों को, वो रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएंगे और ये ज़मीन हमवार मैदानी इलाक़े की तरह रह जाएगी और इसे चमड़ी की तरह फैला दिया जाएगा। और एक हदीस मुबारक में आता है कि इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से बदल दिया जाएगा और वो ज़मीन चांदी की ज़मीन होगी और ऐसी ज़मीन होगी जिस पर कोई गुनाह न किया होगा। तो मालूम यह हुआ कि जो क़यामत की ज़मीन होगी वो गुनाहों से पाक होगी। वहाँ गुनाहगार तो मौजूद होंगे लेकिन गुनाह कोई मौजूद नहीं होगा। हाँ, उनके नाम एमाल मौजूद होंगे और वो नाम एमाल उनको कल क़यामत में दिखाए जाएंगे और उसी की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाएगा। इसी तरह कहा गया कि आसमान भी तब्दील कर दिए जाएंगे। चुनांचे क़ुरान सूरतुल मारिज में इरशाद होता है, यौम तकूनु समाउ कल मुह्ल, कि जिस दिन आसमान पिघल जाएगा और तांबे की तरह हो जाएगा। और फिर फरमाया व इदस समाउ कुशितत, और जब आसमान खींच लिया जाएगा, जब आसमान चीर दिया जाएगा तो मालूम ये हुआ कि ज़मीन को ज़मीन से बदल दिया जाएगा, आसमान को आसमान से बदल दिया जाएगा। और मेरा रब्बे ज़ुल जलाल तो तमाम चीज़ों पर कादिर है, वो तो कुन फ़यकून का हुक्म दिया करता है। किसी चीज़ को कहता हो जा तो वो चीज़ हो जाया करती है। उसे किसी आलात की एहतियाज नहीं है, उसे किसी इंस्ट्रूमेंट्स का मोहताज नहीं है, बल्कि उसका हुक्म और उसका इशारा ही हर चीज़ के लिए काफ़ी और शाफ़ी हुआ करता है। चुनांचे उसके लिए ज़मीन को बदलना और आसमान को बदलना बेशक कोई बड़ी बात नहीं है। वो रब्बे ज़ुल जलाल जिसने पहली मरतबा ज़मीन को बनाया, पहली मरतबा आसमान को हवाओं में मुअल्लक़ किया, वो रब्बे ज़ुल जलाल इस जैसी हज़ारों ज़मीनें बना सकता है, हज़ारों आसमान बनाने पर कादिर है। इसलिए कि किसी चीज़ को बनाना मुश्किल हुआ करता है, दोबारा बनाना हरगिज़ मुश्किल नहीं हुआ करता। हमारी दुनिया का उसूल है कि जब कोई एक डिवाइस बनकर, कोई एक चीज़ बनकर मार्केट में आ जाती है तो फिर चाहे तो हज़ारों लाखों उसकी कार्बन कापीज़ बनाई जा सकती है, बेआई नहीं। इसी तरह ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान दूसरे आसमान से बदल दिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि फरमाया कि उस दिन मुजरिमों को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ होगा। मालूम ये हुआ कि हमारी दुनिया में जब किसी को जुर्म करने पर हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे पकड़ लिया करते हैं तो सबसे पहले उन्हें हथकड़ी लगाई जाती है। लिहाजा यहाँ पर यह ख़तरा होता है कि कहीं वो राह फ़रार इख्तियार ना कर ले, वहाँ पर हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर इसलिए लगाई जाएंगी कोई भाग जाएगा, बल्कि वहाँ पर हथकड़ियाँ और जंजीरें इसलिए डाली जाएंगी कि वहाँ पर वो इबरत के निशान होंगे और उनको देखकर लोग खौफ में मुब्तला होंगे कि कितने जालिम लोग थे कि जिन्होंने दुनिया में बुरे काम किए,
इसलिए वहाँ पर वो बुराई की तस्वीर बन जाएंगे, इबरत का निशान बन जाएंगे, इसलिए उन्हें जंजीरें पहनाई जाएंगी। और फिर इरशाद होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, वो उन्हें आग भड़काने वाली रोगन की कमीज़ पहनाएगा और उनके चेहरे आग से झुलस जाएंगे। लिहाजा हमारी दुनिया का उसूल है कि जब आग को तेज़ करना मकसूद होता है, भड़काना मकसूद होता है, तो फिर मिट्टी का तेल डालते हैं, केरोसिन ऑयल डालते हैं, या पेट्रोल छिड़क दिया करते हैं, या अल्कोहल छिड़क दिया करते हैं। तो ये सारे के सारे वो मीडियाज़ हैं जो आग को एलिवेट करते हैं। आग का शोला इनको देखकर तेज़ी के साथ लपकता है। रब्बे ज़ुल जलाल कि ये सारी मादनियात पैदा करता है। लिहाजा रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कल क़यामत में भी हम तुम्हें मिसालन ये बता रहे हैं कि कल क़यामत में भी हम तुम्हें रोगन तुम्हारी कमीज़ों पर लगा देंगे। लिहाजा दूर ही से आग उन्हें पकड़ लेगी और भड़कना शुरू हो जाएगी, और वो आग जब चेहरे तक पहुंचेगी तो उनके चेहरों से लिपट जाएगी, उनकी खाल झुलस जाएगी, और वो वहाँ पर चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे। और फिर अगली आयत मुबारका में फरमाया कि अल्लाह हर शख्स को उसके कामों का बदला देगा, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इसलिए आक़ाए कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों फितने के दज्जाल के फितनों से बचो, और लोगों क़यामत बिल्कुल मेरी दो उंगलियों के दरमियान जितना फासला है, हमसे क़यामत इतनी ही दूर है। तो यहाँ पर ये बताया कि क़यामत जल्दी आने वाली है। हदीस मुबारका में भी फरमाया गया कि क़यामत में और हम में बहुत कम फासला है। तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि हमारे दरमियान क़यामत तक कोई और नबी आने वाला नहीं, और दूसरी ये कि हम आखिरी उम्मत हैं, हम उम्मत वस्ता हैं, हम ऐसी उम्मत हैं जिनको उम्मत खैर कहा गया, जिनको बेहतरीन उम्मत कहा गया। बनी इसराइल को भी बेहतरीन उम्मत कहा गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम आखिरी उम्मत है। और कल क़यामत में जब ये सारी की सारी अल्लाह की अदालत और निज़ाम इंसाफ बपा होगा, तो वहाँ पर शहादतें दी जाएंगी, गवाही दी जाएंगी, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा की क्या शान होगी कि वो बतौर गवाह पिछली उम्मतों पर शाहिद बनकर आएंगे, गवाही देंगे, और उनकी गवाही को अल्लाह तबारक व तआला ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही की वजह से मोतबर करार देगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की हक़ानियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसको सही पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।